Hello and a very warm welcome to yet another exciting episode of the Anubhav Sapra Show, a show where you bond over food, people, culture, travel, and stories. 2020 to 2021 was a harsh year for all of us. It made us realize the value of health and a healthy lifestyle. We saw a radical change of minds towards a more sustainable mode of living. In all such changes, one thing that was deeply talked about was nutrition. And today we have an expert, someone who has been actively spreading awareness and educating people to lead a better and healthy lifestyle. So, welcome Rupa Soniji, who is a nutritionist, parent coach, runner, and a cyclist. Thank you for inviting me. It's a pleasure to be here with you, sir. I've seen your page on Instagram. You do many things. मतलब आपका एक तो इनिशिएटिव सोल फिट है जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे. साथ में आप साइक्लिस्ट भी हैं, रनर भी हैं. तो Yes. बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट, अपनी जर्नी के बारे में आप हमें बताएं. Yeah, sure. Actually, cycling and running came with fitness, actually. I was quite overweight and around 90 kgs at a time. And slowly, just wanted to get back to shape after my kids. So started with running and cycling. We joined a group. We have a group here in Dehradun, Dehradun Runners Group and Dehradun Cycling Group. There are two groups here. And so I joined one of the groups just to be a little regular with it, because हम अपने आप we don't tend to be regular. हम अपने आप आज करेंगे कल नहीं करेंगे. So I joined this group and इसको join करने के बाद से it's a life changer. I started running पहले 5 kilometers, फिर 10, then I am into half marathons अभी 21. So slowly the progress continued. And with this, cycling came in life. साइकिलिंग आने का एक और इंटरेस्टिंग रीजन था. एक तो फिटनेस था ही. देहरादून इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड इतनी छोटी छोटी जगहें हैं देहरादून में देखने के लिए दैट आई थिंक जो हम कार पे नहीं देख सकते एंड वी कांट एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ देहरादून. सो साइकिलिंग वाज वन थिंग व्हिच मेड मी go and see and visit all those places which Dehradun has. The beauty of Dehradun, actually, I could see that. So this is how both these things came in my life, and I'm blessed to be a part of it. They are my, I am a part of their life, and they are in my life, because of this, I am here today in front of you. तो सोल फिट पहले आया कि साइकिलिंग और रनिंग पहले आया? साइकिलिंग रनिंग पहले आया एंड उसके बाद सोलफिट आया. I was always into diet and nutrition. I was very concerned about what I'm having. मैंने क्या खाना है, and I used to always keep telling people also कि यार ये मत खाओ, क्यों खा रहे हो ऐसे? You should not have it. It's junk है. I used to start my own speech, कहीं भी बैठना अपनी बात कर देनी. So I thought कि let me एक एक ऐसा मीडियम बनाना चाहिए जिससे I can express myself and I could reach out to more people and spread this message of fitness and wellness to one and all. So that is how Soulfit came. तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप गाड़ी से कहीं जाते हैं, आप कार से कहीं ड्राइव कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं. इनफैक्ट वॉकिंग का भी मैं खुद दिल्ली में लगभग एक डेकेड से फूड वॉक्स कर रहा हूँ, 2011 से इनफैक्ट. तो शुरुआत ऐसे हुई थी. मैं भी रैंडमली दिल्ली में जगह जगह पे वॉक करता था, और लेकिन एक कॉन्शियस वॉक करता था कि फूड एक्सप्लोर करने के लिए कि सड़क पे क्या मिल रहा है आसपास. और वो बाद में मेरा जो पैशन था वो प्रोफेशन में बन गया और फूड वॉक्स शुरू हो गई. आपका भी काफी इंटरेस्टिंग था कि आपने भी रनिंग और साइकिलिंग के बाद अपना इनिशिएटिव सोल फिट शुरू किया. बहुत ही अच्छा. उसके बाद आज की डेट में मतलब एक क्या आप कहें ये लाइफस्टाइल चेंज है, एथलीट होना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, और मेट्रो सिटीज में ये अब ज्यादा देखने को मिलता है, खासकर बड़े बड़े शहरों में. क्योंकि छोटे शहरों में जहाँ पे सब लोग आसपास रहते हैं वो ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, कंपेयर टू मेट्रो सिटीज जहाँ पे लाइफस्टाइल बिल्कुल एक तरह से वैसी हो गई कि आप जब प्री कोविड टाइम में आप अपने कार में बैठते हैं, सीधे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में से सीधे वापस घर पे आते हैं. एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है और खुद को एक्टिव रखने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है. तो हाउ डू यू डिफाइन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन टुडेज लाइफस्टाइल? हाँ, वेरी नाइस. एक्चुअली न्यूट्रिशन जो है इट इज अ की ऑफ हेल्दी लाइफ. हमारी जो लाइफ है, हमारी जो हेल्दी लाइफ है, इनफैक्ट उसकी की रोल ही न्यूट्रिशन प्ले करता है. We can lead a healthy life if we have a nutritious and a balanced diet. That is very, very important.
मैं हमेशा कहती हूँ कि बैलेंस डाइट को मैं इस तरीके से डिफाइन करती हूँ, या न्यूट्रिशन को मैं इस तरीके से डिफाइन करती हूँ कि हम अपने डाइट में अपने मैक्रोज और माइक्रोज, व्हाट वी कॉल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, सबको करेक्ट मात्रा में खाएं. इट इज नॉट कि सब कुछ खाना है. इट इज नॉट ऐसे आप सब कुछ नहीं खा सकते, बट यू शुड नो हाउ मच यू हैव टू हैव एंड कितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. देखिए पहले टाइम अलग था, जब हमारे जो पहले हमारी दादी नानी थे, दे यूज्ड टू वर्क सो मच, वो इतना काम करते थे कि कुछ भी खाया चल गया, बट दे वर कनेक्टेड टू देयर रूट्स. I think connection with the roots is still coming back. Now people are getting back. हमें मक्खन खाना है या घर का घी खाना है. बीच में एक टाइम आया था कि ये सब चीजें कोई हाथ नहीं लगाता. अरे घी है, नहीं नहीं. मक्खन है, नहीं नहीं. But now getting back to your roots is another thing what I wanted to say. कि ये भी बहुत जरूरी है, बिकॉज जो घर के खाने की और जो हमारे पुराने टाइम की जो पुरानी रेसिपीज चली आ रही हैं, उनकी जो वैल्यू है वो आज के खाने में नहीं मिलती. न्यूट्रिशन, ताजा खाना बनाएं और ताजा खाएं. एक टाइम था हम पैक करके खाने फ्रिज में स्टोर करके रख देते थे, चपातीस तक स्टोर करके रखते थे, क्योंकि हम इतने बिजी थे अपनी लाइफ में कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है, शाम को ये है. सो गरम किया, माइक्रोवेव में किया, एंड यू नो व्हाट, दैट वाज द रीजन कि हमें इतनी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई. यू नो लाइफस्टाइल डिजीजेस, जितने कैंसर्स हो रहे हैं, दिस ऑल बिकॉज ऑफ यूज ऑफ टू मच ऑफ माइक्रोवेव एंड पुराना खाना. नॉर्मली कहते हैं अगर आप खाने को रीहीट करो तो इट टर्न्स इनटू पॉइजन. कभी भी खाना रीहीट नहीं करना चाहिए. फर्स्ट कुक करिए और उसी टाइम ताजा खाइए. उसका स्वाद भी अलग होगा एंड न्यूट्रिशन वाइज भी अच्छा होगा. सो मतलब जी जी, प्लीज प्लीज गो अहेड. सो आई वुड ऑलवेज से कि खाना घर का खाइए, ताजा खाइए, लोकल खाइए, जो मौसम का अवेलेबल है. आजकल सब कुछ मिल रहा है. मार्केट इज फ्लडेड विद एवरीथिंग. आपको पालक भी मिलेगी, अभी सरसों भी मिलेगी, एंड जो अभी की सब्जियां हैं जो बेल पे लगती हैं, जैसे तोरी हो गई, लौकी हो गई, पंपकिन हो गए, टिंडे हो गए, ये जो बेसिक ग्रीन वेजिटेबल्स है ये भी मिल रही है. दैट इज आवर चॉइस, बट चॉइस शुड बी जो मौसम का है और लोकल अवेलेबल है, वो खाना चाहिए. बिल्कुल आपने सही कहा. इनफैक्ट आज सुबह ही मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें जो डून टाइम्स आता है उसमें उन्होंने क्लाइमेटेरियन की बात की है कि क्लाइमेटेरियन कौन होता है. तो दे सेड कि क्लाइमेटेरियन वो है जो जो सीजन में है अवेलेबल वो Yes. खाना, और साथ साथ ये भी कि जो इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं पहुंचा रहा है. जैसे बिल्कुल. उन्होंने एग्जांपल दिया कि एक कोई एक इंडिविजुअल है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, सुबह ही मैंने पढ़ा, तो बताया कि उन्होंने आलमंड्स खाना बंद कर दिया. उन्होंने इसलिए बंद किया क्योंकि एलिमेंट्स के लिए बहुत सारा पानी का इस्तेमाल होता है, और Okay. ड्रॉट कैलिफोर्निया में हम सबने देखा है, बीच में ड्रॉट भी आया था. तो Yes. उस समय तो वो भी एक माइंडफुल ईटिंग की सोच के कॉन्शियसली क्या खाना है, किससे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो उन्होंने बिल्कुल. एक मतलब आज सुबह एक नई चीज सीखने को मिली कि क्लाइमेटेरियन उसे बोलते हैं. बिल्कुल. और मतलब आपसे बात करते करते लग रहा है कि काफी चीजों पे बात की जा सकती है. जैसे आपने एक ऑयल आपने बताया, घी और बटर के बारे में. Yes. अब मार्केट में इतने सारे अलग अलग तरह के मीडियम ऑफ कुकिंग ऑयल्स हैं, हाँ जिसमें जी. आपका रिफाइंड ऑयल भी है, मस्टर्ड ऑयल भी है, घी भी इस्तेमाल करते हैं लोग, मक्खन भी इस्तेमाल करते हैं. तो इसमें से कौन सा मतलब सही है? जैसा मुझे पता है कि जैसा हम देखते थे, एक समय था जब डालडा वनस्पति घरों में Yes. बनता था, लोग इस्तेमाल करते थे, लोगों के घर में ग्रोसरी में टिन के टिन आते थे Yes. और उसका इस्तेमाल किया जाता था. उसके बाद हुआ कि हमें मार्केटिंग के थ्रू बताया गया कि नहीं, ये गलत है, आप इस पे शिफ्ट होइए. फिर उसके बाद एक समय आया, लोगों ने वो बंद कर दिया, वनस्पति खाना, रिफाइंड ऑयल की तरफ आ गए. फिर रिफाइंड ऑयल का अब ऐसा हो गया कि रिफाइंड ऑयल भी खत्म हो रहा है, लोग कह रहे हैं रिफाइंड ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. नाउ थर्ड स्टेज है कम कि वापस से हम दोबारा वी आर बैक टू आवर रूट, सेइंग नहीं, घी अच्छा है खाने के लिए. तो अभी अभी के इस लाइफ में, इस लाइफस्टाइल में, जिस तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं, काम हाँ करते जी. हैं, उसमें क्या सही है और कैसे पता चलता है कि क्या हमारे बॉडी के लिए सही न्यूट्रिशन या प्रोवाइड करता है? सी देखिए, ऐसे तो सारा खाना अच्छा होता है, और ऑयल का अपना कोई टेस्ट नहीं होता. आप जो मसाले उसमें डालते हो उसका टेस्ट होता है. सो दैट इज अप टू यू, आप किस तरीके से खाना बना रहे हैं. देखिए प्रोसेस्ड जितने ऑयल्स हैं, हम जो रिफाइंड जिनको कहते हैं, उनको कितनी प्रोसेशन में कितना ज्यादा रिफाइन किया जाता है कि दे आर नॉट वेरी गुड फॉर आवर बेसिक हेल्थ. सो जो अब नई थ्योरीज आई हैं, जो नया आया है, उसमें कहते हैं कि घी खाइए, जो हम अपने घर का गाय का घी है या हम घर में निकालते हैं. मक्खन खाइए, जो शुद्ध ताजा मक्खन निकाला जाता है, या ऑलिव ऑयल यूज कीजिए, क्योंकि उसमें या कम मात्रा में यूज कीजिए और उसमें ज्यादा आपको बेनिफिट देता है. ऑलिव ऑयल, घी है वो आपके फैट सेल्स को भी रिड्यूस करता है. इट इज वेरी गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम, आपके स्किन के लिए अच्छा है,
आपको स्ट्रेंथ देता है, जॉइंट्स लुब्रिकेशन के लिए अच्छा है। सो घी इज अच्छा, घी खाने का भी एक तरीका होता है सर। एक्चुअली नॉर्मली हम कहते हैं, अब किसी ने कह दिया कि घी खा लो, तो अब इसका ये मतलब नहीं ना कि घी के पराठे तल तल के हम खाने लग जाएं। सो इट शुड बी ऑलवेज, इट्स अ करेक्ट वे टू यूज घी। घी को आप दाल चावल के साथ खाएं ऊपर डालकर, इट इज वेरी गुड, इट इज अ होलसम मील। दाल चावल का कॉम्बिनेशन, ऊपर घी डाल के आपको प्रोटीन, इट्स अ प्रोटीन मील, फुल होलसम मील विद सैलेड। सो कोई हार्म नहीं देगा। रोटी के ऊपर घी लगा के खाए आप, बिल्कुल खाइए, बच्चों को भी दीजिए। पर जहाँ हम घी को फ्राई करना शुरू करते हैं, पराठे बनाने में उसको सेकते हैं, तो उसकी जितनी गुडनेस है घी की, वो खत्म हो जाती है। सो घी खाने की भी तरीका होता है। देन आई टॉक अबाउट ऑलिव ऑयल, जिसको आजकल बहुत चलन है, तो उसको, जिसमें उसमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, एंड इट्स वेरी गुड फॉर आवर हार्ट, लिवर, और हम विटामिन ई होता है इसमें, जो हमारी बेसिक, जो हमारी हार्ट प्रॉब्लम्स है उसको कम करता है। एंड हमें थोड़ा कम ही खाना चाहिए। ऑयल का यूज बेसिकली स्पेरिंगली होना चाहिए। फिर कच्ची घानी का तेल है, जो हमारा सरसों का तेल है, जो सदियों से यूज होता आ रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि उसमें कोई प्रोसेस नहीं किया जाता। सो जो बेसिक अनप्रोसेस्ड ऑयल है, इनफैक्ट अनप्रोसेस्ड फूड की बात भी मैं करूंगी कि वो भी नहीं खाना चाहिए, जो प्रोसेस्ड फूड है, सॉरी, वो भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉट गुड। आप सोचिए किसी चीज को प्रोसेस करने में और हमारे तक पहुंचाने में कितने केमिकल्स यूज होते होंगे, कितनी रिफाइंड, कितनी चीजें डालते होंगे वो, तब तक वो हमारे पास पहुंचता है। सो ट्राई एंड यूज अनप्रोसेस्ड फूड, नेचुरल फूड खाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, कितना डेली डाइट में कितना घी कंज्यूम कर सकते हैं डे टू डे बेसिस पे? आई थिंक 1 चम्मच घी इज इनफ फॉर अस। और बाकी जैसे हम अपने दाल में तड़का भी लगाते हैं, कई बार लोग वो हल्का सा लगाते हैं, बट 1 टीस्पून ऑफ घी इज क्वाइट सफिशिएंट। चाहे आप रोटी पे लगा के खाइए, दाल चावल पे डाल के खाइए, इट इज क्वाइट सफिशिएंट। हमारे जॉइंट्स को भी लुब्रिकेट करता है, हमारे फैट सेल्स को सप्रेस करता है, स्किन अच्छी करता है हमारी। सो घी में तो बहुत बेनिफिट्स हैं। और जैसे आपने अभी एक रेफरेंस दिया कच्ची घानी हाँ जी, मस्टर्ड ऑयल जो बाजार में मिलता है, हाँ जी, लेकिन उसपे भी कई तरह के बाजार में ब्रांड्स हैं, सबका प्राइसिंग भी डिफर करता डिफरेंट, है, पता हाँ नहीं। जी। तो ये कैसे पिक, मतलब एक आम एज अ लेमैन, मतलब आप समझ लीजिए मेरा क्वेश्चन कि कैसे पिक करना चाहिए कि कौन सा ब्रांड सही है? ये क्या कुछ इसका कोई एक देखिए, ब्रांड्स तो हर बंदा अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, वी ऑल, दे आर ऑल प्रमोटिंग देयर ब्रांड्स। पर कच्ची घानी आउट ऑफ ऑल द ऑयल्स इज मच सेफर टू यूज। आप उसको एक हीटिंग पॉइंट पे लेके जाके बिल्कुल कम कर देते हैं, ठंडा करते हैं, एंड देन यूज करते हैं, सो ताकि उसके हम बेसिक, जो बेसिक न्यूट्रिएंट है, हम उसका ले पाए। कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो आजकल यूज किया जा रहा है बहुत ज्यादा। ऑलिव ऑयल को हम ड्रेसिंग्स में यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल भी खाने में यूज किया जा रहा है, इफ यू हैव अ टेस्ट ऑफ दैट। सो आजकल वो भी बहुत यूज हो रहा है। अब कोकोनट ऑयल पे मुझे ध्यान आया, एक समय बीच में एक पूरा कैंपेन, एक वो हुआ था, कैंपेन बोलेंगे या फिर कोई स्टडी हुई थी हार्वर्ड की, कहाँ की स्टडी, कोकोनट ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और उसके बाद फिर साउथ इंडिया में लोगों ने बोला कि हम लोग तो इतने सालों से खाते आ सालों रहे हैं, से हमें होता तो है। कुछ 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 इसका ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है। पता नहीं, तो हो सकता है कि बहुत सारी स्टडीज ये भी होती हैं कि स्पॉन्सर्ड स्टडीज होती हैं, यस सर। तो वो डिफाइन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसी सर के साथ, जी जी। कोकोनट ऑयल की तो ऑयल पुलिंग भी की जाती है सर, जो द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पीपल, कई लोगों को कहती हूँ कि आपके पूरे डाइजेशन को अच्छा करने के लिए आप कोकोनट ऑयल, थोड़ा जो हमारा वो वर्जिन होता है कोकोनट ऑयल, वो लेकर 2 मिनट के लिए डालकर, आप rinse करके यू कैन स्पिट इट आउट एंड अच्छा। देन रिंस योर माउथ, सो आपके पूरे डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करता है वो। इट्स कॉल्ड ऑयल पुलिंग। हाँ, मतलब सीधे ऑयल को मुंह में अंदर लिया ही और रिंस किया और, स्पिट कर दिया। हाँ अच्छा। जी। अच्छा, इसी हमने अभी ऑयल्स की बात की अलग अलग, अब नेक्स्ट है सुपर फूड्स। या सुपर फूड्स ये भी एक काफी ज्यादा, मतलब लास्ट, मैं कहूँगा ज्यादा नहीं, लास्ट डेकेड में ही इतना हाँ ज्यादा जी, इवॉल्व हुआ है। और हाँ जब जी। सुपर फूड्स के बारे में सुनता हूँ मैं, तो बहुत ही अजीब लगता है कि ऐसे ये सुपर फूड है। मैं जब दिल्ली में टूर्स करता हूँ, तो मेरे साथ जैसे कभी गेस्ट होते हैं, उनको मैं दिखाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, तीसी, जिसको फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, हाँ तो जी। वो दिखाऊंगा, बोलेंगे अरे ये तो दिस इज अ सुपर फूड। या फिर मखाना, मखाना, फॉक्स फॉक्स नट्स, उसको, ऑक्सनट्स। वो भी सुपर फूड्स। तो ये इसके ये लास्ट, मुझे लगता है कि डेकेड में ज्यादा शुरू हुआ है। और तो क्या है एग्जैक्टली सुपर फूड्स? सर मेरे जो व्यू पॉइंट है, देखिए सबका अपना व्यू पॉइंट होता है, मेरा व्यू पॉइंट है कि जो भी फूड रिच इन
एंटीऑक्सीडेंट्स या न्यूट्रिएंट्स में रिच है और आपके स्पेसिफिकली आपको मींस किसी भी इलनेस से या डिजीज से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, दैट इज सुपर फूड। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारा खाना ही सुपर फूड है। आप ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा जितनी हमारी छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक किसी चीज को फोकस करना है, सपोज इम्यूनिटी है उसको फोकस करते हैं, तो आजकल सुपर फूड आंवला चल रहा है बहुत ज्यादा, कि आंवला खाइए, उसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है, सो इट इज अ सुपर फूड। बट उधर बेरीज का नाम लीजिए, बेरीज है जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, नेचुरली स्वीट है, एंड इट्स वेरी गुड टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। सो ये भी एक नया चलन आया है कि बेरीज खाइए, पर अगर आप बेरीज और आंवला को कंपेयर करेंगे, आंवला हमारी लोकल गूसबेरीज यहाँ की बेरी है, सस्ता भी है एंड वेरी रिच इन विटामिन सी, इम्यूनिटी हमारी बढ़ाता है। सो अगर आप ध्यान देखें, सर फिश देख लीजिए, फिश इज ऑल्सो सुपर फूड सर, ओमेगा 3 होता है उसमें रिच, इट्स गुड प्रोटीन, हमारे हार्ट के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जितनी ग्रीन लीफी सब्जियां हैं सर, जो आपकी स्पिनिश होगी, केल हो गई, जो भी हैं, सो उसमें विटामिन ए है और कैल्शियम है सर। ये फोटोकेमिकल्स हैं सर, जो प्लांट बेस्ड वो होते हैं केमिकल्स जो बनाता है, दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ सर, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हमारे को स्ट्रेंथ देता है सर। आज के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम पे, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड इम्यूनिटी, कि हमें कैसे, इम्यूनिटी क्या है सर, अपने आप को तंदुरुस्त रखना है। वी हैव टू कीप आवरसेल्फ इंटरनली स्ट्रांग टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज। सो चाहे वो आप सर योगर्ट ले लीजिए सर, योगर्ट इज ऑल्सो सुपर फूड, दही के इतने गुण हैं उसमें सर, इट्स अ प्रोबायोटिक, हमारे गट हेल्थ को बहुत अच्छा करता है सर। जब तक हमारी गट हेल्थ ठीक नहीं है, हमारी बॉडी का कोई सिस्टम नहीं ठीक चलता। सो दही में नॉर्मली कहा जाता है किशमिश भिगो के खाएं, भिगो कर जमानी चाहिए। सो उसमें प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों मिलता है सर। सो आप सोचिए, हमारी जितने गट के अच्छे बैक्टीरिया है, प्रीबायोटिक उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, दैट इज रेजन्स, उसको मल्टीप्लाई करता है। सो अगर हम इन दोनों को मिक्स करके खाएंगे, जमाएंगे और खाएंगे, सो आवर गट हेल्थ विल बी वेरी गुड। सो अगेन दिस इज इम्प्रूविंग, दिस विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर डाइजेशन, इम्यूनिटी, एवरीथिंग। सर आंवला हो गया, टर्मरिक सर कितना यूज हुआ इस एक साल में, आई थिंक पैंडेमिक के पूरे साल में टर्मरिक वाज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। पर आपको पता है, देयर वाज मेरी किसी से उस दिन टॉक हो रही थी, ही वाज टेलिंग के हर चीज को यूज करिए, चाहे वो आंवला है, टर्मरिक है, बट दे शुड बी अ मॉडरेशन। कई लोगों को बहुत ओवर यूज टर्मरिक करने से हाथों में रैशेस हो गए, फुंसी हो गई, बिकॉज गर्म होता है, दूध में मिलाया, खूब पिया, तो क्योंकि ये सोच के कि इम्यूनिटी बढ़ानी है अपनी, हमें पैंडेमिक के टाइम में भी हैव टू फाइट करो ना। सो बट सर एवरीथिंग शुड बी यूज्ड इन मॉडरेशन। अच्छा सर, फ्रूट्स हैं हमारे सर, दे आर ऑल्सो सुपर फूड सर, विटामिन सी है, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करते हैं सर। खाना सभी, आई वुड से एवरीथिंग जिसमें न्यूट्रिशन है, जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है, वो सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। ये चिया सीड्स है या फ्लैक्स सीड्स हैं, ये तो सर अब आए सर कुछ सालों से सर, पहले तो ये हमें पता थे, बट उनको यूज भी कर रहे थे सर, बट इतना इनको ओवर रेट नहीं किया गया था, दे वर नॉट ओवर रेटेड दैट मच। बिल्कुल, सो सर आपने सुपर, बहुत सही बोला शुरुआत में कि हमारे सभी सभी खाने में सुपर फूड है, बिल्कुल सर। सभी खाना हमारा सुपर फूड सर जो ताजा है। बनाया है ना सर, वो सुपर फूड ही है, जो हमारे तन को लग रहा है, हमारे डाइजेशन को अच्छा कर रहा है, हमें तंदुरुस्ती दे रहा है, तो सर वो सुपर फूड ही है ना। हम्म। और ये जो जितनी चीजें बताई आपने, ये वेस्टर्न कंट्रीज ने, मुझे लगता है कि बाद में इसको सुपर फूड कॉइन कर दिया होगा, लेकिन हमारे लिए तो इंडियन जो हमारा ये फूड कल्चर है, जो फूड सिस्टम है, लोकल, उसमें तब से हम लोग खाते आ रहे हैं चीजों को, लेकिन कभी कॉन्शियसली सोचा नहीं कि ये ऐसा, अच्छा ये इससे ये फायदा है, इसमें यस एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें ये न्यूट्रिशन है, बट डे टू डे लाइफ में सब लोग कहीं ना कहीं कंज्यूम करते आ रहे हैं। बिल्कुल सर, करते आए और सालों से कर रहे थे सर। हमारी दादी नानी दही खिलाती थी हमें सुबह, हमारे पेरेंट्स हमें जाने से पहले दही में चीनी डाल देते थे सर। हम, मैं आपको रेजन्स का एग्जांपल दे रही हूँ सर, यूज तो पहले से हो रहा था, बट हमें ये नहीं मालूम था कि उसके कितने फायदे हैं सर, एंड क्या यूज, मतलब कितना हमें इफेक्ट कर रहा है हमारी जनरल हेल्थ को, हमारी इम्यूनिटी को हमें स्ट्रेंथ दे रहा है। यस तो ये सब डेली टिप्स आप अपने सोशल मीडिया पे, अपने पेज पे देते हैं, जैसे आपने बताया दही के बारे में कि दही को यस सर। किशमिश के साथ, और तो ये सब। सर मैं छोटी छोटी रील्स और छोटे वीडियोस बनाती हूँ, एंड आई कीप पोस्टिंग देम सर, हम्म, ताकि पीपल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। मेरा पर्पस ही ये है सर। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं डाइट्स के बारे में। अभी पिछले, अगेन मैं फिर कहूँगा, ये भी एक ट्रेंड है,
डाइट्स का। पहले तो इस समय में लोग इतनी खुद ही फिजिकल वर्क करते थे कि किसी को डाइट की जरूरत पड़ती नहीं थी। जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी के मैक्सिमम उन लोगों ने कभी आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे दादाजी मुझे अभी भी याद है, वो कहते हैं ना, चाय में चीनी डालने के बाद भी अलग से वो 2 चम्मच चीनी डाल के चाय पीते थे। और Yes. कभी उनको वो नहीं हुआ इश्यू कि डायबिटिक है, क्योंकि वो काम करना, पैदल दूर-दूर तक जाना, और कभी वो इश्यूज़ नहीं आए। लेकिन आज के डेट में लाइफ़स्टाइल, जैसे आपने भी रेफ़रेंस दिया कि लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ आ गई हैं बहुत सारी। तो अब जाके लोगों को इश्यूज़ आने लगी हैं, ये जो ओवरवेट है और ये सब Yes. चीज़ें हैं, शुगर कम कंज़्यूम करना है, तो अलग-अलग तरह की डाइट्स आ गई हैं, जिसमें कुछ तो नाम मुझे पता है, जैसे कीटो डाइट है, उसके बाद फिर और भी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी लोग Yes, sir. करते हैं। तो इन सब की क्या क्या एग्ज़ैक्टली है? अगर थोड़ा-थोड़ा लाइक Yes, sir. कॉन्साइज़ में कि क्या-क्या कौन-सी तरह की डाइट्स होती हैं? और उसका क्या बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? यस, मैं आपको सर दोनों चीज़ें बताऊँगी कि जो हम कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं एंड नॉर्मल खाना खाना, जो हम एक रूटीन में बैलेंस डाइट घर में नॉर्मल खाना, उसके क्या फ़ायदे हैं? सो देखिए सर, कीटो डाइट बहुत फैड चला है पिछले कुछ सालों से। एवरी सेकंड पर्सन क्या है, मैंने कीटो किया, मेरा लूज़ हुआ वेट। आई एम डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। सर बिल्कुल ठीक बात है, इनसे वेट लूज भी होता है एंड हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। इट इज नॉट, आई विल नॉट से कि नहीं होती, क्योंकि हम कीटो डाइट में क्या होता है सर, हम लोग कार्ब्स को माइनस कर देते हैं डाइट से एंड हम उसको रिप्लेस कर देते हैं फैट से। सो हमें जो बॉडी हमारी एनर्जी लेती है वो फैट से लेती है एंड इट बुट्स द बॉडी। जो कीटो डाइट जब हम कार्ब्स को बिल्कुल माइनस कर देते हैं, तो इट बुट्स द बॉडी इनटू अ मेटाबॉलिक स्टेट कॉल्ड कीटोसिस। सो जो कीटोसिस होता है सर, तो उससे हमारी फैट बर्निंग कैपेसिटी जो होती है ना बॉडी की, वो बढ़ जाती है। सो दैट इज इट। और सर इंटरमीडिएट फास्टिंग भी आप 8 से 11 घंटे 16 घंटे तक हम फास्टिंग करते हैं। तो सर उससे क्या होता है, वो भी फैट बर्निंग होता है, क्योंकि सर उस जो फास्टिंग का विंडो है, उस टाइम हम कोई भी खाना जो हमारे इंसुलिन को स्पाइक करे नहीं खाना। सो नॉर्मली जीरो कैलोरिक फूड जिसको कहा जाता है, या जैसे ग्रीन टी हो गई या ब्लैक कॉफी हो गई, ऐसी चीजें जिससे हमारी इंसुलिन को स्पाइक ना मिले, तो वो खाया जाता है सर, वो पिया जाता है सर। ये इससे क्या होता है कि इससे हमारी फैट बर्न होता है, इंसुलिन लेवल्स ड्रॉप होते हैं। इट इज वेरी गुड सर टू रिड्यूस वेट ऑल्सो। बट सर इसमें होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें फैट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं, बिल्कुल माइनस करते हो आप। सो जो पीपल दे टेंड टू स्टार्ट ईटिंग प्रोटीन्स मोर, तो हम प्रोटीन खाना शुरू कर देते हैं सर, क्योंकि भूख तो लगेगी और कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो प्रोटीन ज्यादा खाते हैं। अब सर क्या है, प्रोटीन्स को भी एक स्पेसिफिक मात्रा में ही खाया जाता है। सो उसको ज्यादा हुँ। खाते हैं तो उससे क्या होता है, वो भी हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीज डाइट्स। करते हैं सर, इनसे हमारे इंसुलिन ड्रॉप होता है, हमारी वेट लूज भी होता है एंड दे आर वेरी गुड, मैं ये नहीं कहूंगी। बट सर बहुत देर तक ये सब करने से सर, जैसे कीटो डाइट कर रहे हैं या ये सब करने से सर प्रॉब्लम्स भी आती है कि हमें मिनरल्स और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है कि हम सिर्फ प्रोटीन्स खा रहे हैं थोड़े से एंड हम फैट्स पे वो है। सो मिनरल्स, हमारी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है और सर लॉन्ग रन में ये बहुत देर तक हेल्प नहीं करता सर। प्रोटीन भी कम खाएंगे तो बॉडी मास कम, लीन बॉडी मास कम हो जाता है। सो हमारी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ है, सिर्फ फैट होता है सर। इससे क्या है, जो थोड़ी सी भी जिनको हार्ट इश्यूज हैं या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है सर, उनकी प्रॉब्लम एग्रीगेट हो सकती है बिकॉज ऑफ हैविंग फैट। तो सर ये डाइट्स चलती हैं सर, बट एक थोड़े थोड़े पीरियड के लिए करिए, देन कम बैक टू योर नॉर्मल फूड, देन अगेन डू इट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मत कीजिए, करनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए कीजिए, मैक्सिमम तो 2-3 महीने की, फिर ब्रेक ले लिया, फिर नॉर्मल अपने खाना खाया एंड देन अगेन डू इट। और सर आई वुड से, पर मेरी तो पर्सनल रिकमेंडेशन होती है कि किसी को डाइट को भी अगर हम ना फॉलो करें और हम अपने नॉर्मल घर का खाना खाएं, 3 टाइम नॉर्मल, जैसे सुबह अपना ब्रेकफास्ट, हमारे घर में जो आम हमारे घर में पोहा उपमा हुँ, हुँ। बनता है वो खाएं हम सर, या मिक्स्ड रोटी बनती है, उसको ऊपर घी लगा के खाएं, साथ छाछ लस्सी पिए। लंच में हम अपनी दाल रोटी सब्जी सैलेड, सैलेड जरूर इंक्लूड करें। एंड सर गर्मियां हैं तो छाछ है लस्सी है वो पीजिए। और रात को सर डिनर थोड़ा लाइट कीजिए, जिसमें हम सैलेड है, लीन चिकन हो गया, फिश हो गई, या अगर आप वेजिटेरियन है तो सर वेजिटेरियन ऑप्शंस जो भी मिलते हैं, पनीर है, ये सब लीजिए सर। यू विल ऑटोमेटिकली लूज वेट एंड इम्पोर्टेंटली आप सर 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली कीजिए सर। 10 to 15,000 स्टेप्स चलिए, एक्सरसाइज कीजिए और बैलेंस्ड खाना खाइए, जिसमें सर
हमारे सारे कार्ब्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर बहुत जरूरी है सर डाइट के लिए। तो सर ये सब चीजें होंगी तो सर आप मोटे भी नहीं होंगे, और साथ एक्सरसाइज करेंगे तो सर अपने हम्म, आप आपका वेट कम होगा। हम्म। हम ज्यादा जंक खाते हैं ना सर, इसलिए इट पाइल्स ऑन। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, और साथ साथ जो एक जो डाइट है, जो आपने कीटो डाइट के बारे में बताया, इंटरमीडिएट फास्टिंग के बताया, मिलता है ये खुद से नहीं करना चाहिए, किसी के सुपरविजन में करना यस चाहिए, सर, ऑलवेज। है ना? ये भी यस, बहुत जरूरी है कि आपने बिल्कुल अचानक से ऑनलाइन गूगल किया, पढ़ लिया और शुरू कर दिया करना, और उसके क्या इम्पैक्ट हेल्थ पे पड़ता है, यस क्योंकि सर, बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वो किसी न्यूट्रिशनिस्ट के गाइडेंस में यस ही सर, या डाइटिशियन गाइडेंस में ही करना चाहिए। बिल्कुल। और डे टू डे हमें मतलब मैं भी यही इसी में बिलीव करता हूँ। मैंने आज तक कभी कोई डाइट नहीं किया, मैं भी बहुत ओवरवेट हुआ करता था, हाँ क्योंकि जी, मैं अभी भी मतलब बाहर का बहुत खाता हूँ मैं। बट एक कोशिश रहती है कि जब भी मौका मिले तो फिजिकल एक्सरसाइज कुछ ना कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे की कर ली जाए, बिल्कुल ताकि सर, एक बैलेंस बना रहे, बिल्कुल सर। और जो भी चीजें कंज्यूम की है उसका मतलब एक उसको आप बर्न कर दें। बिल्कुल सर, कि अपनी कैलोरीज बर्न कर लीजिए, और बर्न भी कर लीजिए, और सर साथ ही कंपनसेट हो जाता है सर। देन यू डोंट हैव दैट गिल्ट फीलिंग इन यू कि यार मैंने आज बाहर भी खाया। सर बाहर खाना बुरा नहीं है, आई विल नेवर हम्म, से, बट सर देयर इज ऑलवेज अ मॉडरेशन ऑफ इट ना। हम्म, आप वीक में एक बार ही खाइए, ऑल राइट, एक्सेप्टेड है सर, बिल्कुल खाना चाहिए। हम्म, बट एवरी डे खाएंगे सर तो फिर या तो उसको बर्न करिए और उसकी सिर्फ नेक्स्ट मील रिप्लेस करिए। सो इट्स ऑलवेज व्हेन यू आर हैविंग अ लंच आउटसाइड सर, क्योंकि उनमें जो बाहर का खाना है सर उसमें काफी सोडियम कंटेंट ज्यादा रहता है, एंड वी डू नॉट नो कि किस टाइप का फैट यूज हो रहा है उसमें, क्योंकि हमारे सामने तो नहीं बनता। तो जी। सर उसको कंपनसेट करिए। आप जो नेक्स्ट मील है आपका सर वो उसको लाइट रखिए, मेक इट अ सैलेड और सूप और समथिंग लाइट। सो इट इज ओके। ऑलवेज compensating your diet. बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, नेक्स्ट अभी मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं, और इनफैक्ट जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो हमें पॉडकास्ट में जो लिसनर्स हैं, मेनली फूडीज हैं, जो फूड एंथुजियास्ट हैं वो है, Yes, और उनका भी रहता है कि बाहर खाने का, मुझे भी ऐसे है, बाहर खाने का बहुत शौक होता है, और लेकिन इसके कुछ ना कुछ हेल्थ रिpercussions होते हैं। आपने ये कहा कि उसको ऑफसेट करना चाहिए और कभी कभी खाना चाहिए या पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जब yes, रेस्टोरेंट में जाते हैं हम, कुछ भी कोई मेन्यू होता है, तो उसमें कैसे इवेलुएट करना चाहिए कि इसका क्या ऑर्डर करना सही रहेगा, क्या ऑर्डर करना सही नहीं रहेगा रेस्टोरेंट से, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इन रेस्टोरेंट सेटअप। yes sir, sure. सर सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि देखिए बाहर का खाना हमारे सामने नहीं बनता, और अगर हमारे सामने भी बनता है तो भी वी डू नॉट नो व्हाट टाइप ऑफ ऑयल दे आर यूजिंग, एंड कितने उससे पहले जो मैरिनेट हुआ है उसमें कितना फैट गया हुआ है, कितना सोडियम कंटेंट है। सो आप सर कभी भी देखिए जब हम रात को डिनर बाहर करके आते हैं, सो नेक्स्ट डे व्हाट मॉर्निंग व्हाट हैपेंस इज हमें एक बड़ी ब्लोटिंग सी फीलिंग होती है सर, कई बार थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होता है, गैस एसिडिटी टाइप की फीलिंग होती है। सर इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन है सर सोडियम कंटेंट। जो बाहर का खाना है उसमें ना सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, एंड स्पेरिंगली सर हम घर में खाना बनाते हैं, हम फैट भी थोड़ा हिसाब से डालते हैं, भी जितना रिक्वायर्ड है या थोड़ा डालते हैं। सर बाहर उनको अपना खाना टेस्टी रखना है सर, इट इज ऑब्वियसली हम किसी रेस्टोरेंट टेस्ट की वजह से ही जाते हैं सर, खाना खाने जाते हैं, वी वांट गुड फूड। तो सर वो फैट कंटेंट भी ज्यादा डालते हैं। अच्छा सर जैसे सैलेड्स हैं या कुछ हैं तो उसमें हुडन शुगर्स भी बहुत होती हैं सर, सो जो हमें नहीं मालूम पड़ती। सर सपोज कोई सैलेड है सर, नॉर्मली सैलेड को थोड़ा वो मीठा खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए पाइनएप्पल जूस डाला जाता है सर। सो सर अगर वो रियल का पैकेट आप देख रहे हैं पाइनएप्पल जूस का सर, वो शुगर ही है सर। इट इज 90% शुगर कंसेंट्रेट जितने जूसेस मार्केट में मिलते हैं सर। इट्स नॉट ओनली रियल और व्हाट आई एम नॉट कोटिंग एनीवन, बट जो पैकेट में हमें जूसेस मिलते हैं सर वो सब शुगर कंसेंट्रेट्स ही हैं सर, शुगर बेस उनका बहुत ज्यादा होता है। सो सर न्यूट्रिशन वाइज वो इतने अच्छे दे आर नॉट गुड। अगर आपको बहुत जूसी पीना है तो सर आप घर पे निकाल के पीजिए, कम से कम थोड़ा फाइबर जाएगा उसमें। एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड आप फ्रूट खाइए सर ऐसे ही। सो आई कम बैक टू सर, बाहर का खाने की बात चल रही थी सर, तो ये हिडन शुगर्स हैं, फैट्स बहुत ज्यादा फैट डलता है, तो सर इन सब के साथ हमें जीना भी है सर, बिकॉज हमें खाना है। तो बट सर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वी डू नॉट नो द हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि उस किचन के अंदर किस तरीके से अब हाइजीन बरता जा रहा है सर। आर द वेजिटेबल्स वॉश नाइसली, हाउ आर दे cleaned, how are they cut, so many factors relating to बाहर का खाना।
but we still do not stop eating because I like food and I also eat. So सर छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि हम एक तो सर बाहर कितना खाना चाहिए डिपेंड्स ऑन आवर एपेटाइट कि हम कितना कई लोग तो सारा दिन फास्ट करते हैं कि आज हमें रात को पार्टी में जाना है तो उस हिसाब से बट सर द चॉइस शुड बी अ लिटिल हेल्दी सर जैसे ग्रिल्ड खाने की कोशिश करनी चाहिए जो आजकल बहुत अच्छे तंदूरी प्लेटर्स हैं सिजलर्स हैं ग्रिल्ड सैलेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं सर ठीक है उसमें वो हिडन शुगर है बट सर कंपैरेटिवली टू दोस हेवी मखनी ग्रेवीज एंड उससे तो सर बेटर ही है तो सर हेल्दी चॉइसेस कीजिए फिश खाइए सर ग्रिल्ड चिकन है जो हम इजीली खा सके फिश इज अ वेरी गुड ऑप्शन सर आजकल बहुत अच्छी ग्रिल फिश विद ऑलिव ऑयल ड्रेसिंग्स वगैरह बहुत अच्छी मिलती हैं एंड सर वाटर ले लेने जैसे जैसे हम खाना खाने जाते हैं सर कोल्ड ड्रिंक या वो मोहितोस की जगह ऑफ फॉर वाटर सर दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल सर हमें लगता है कि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमें बहुत डाइजेशन में हेल्प करती है क्योंकि हमें बर्ब्स आ जाते हैं खाते ही बट सर दे डू नॉट हेल्प सर उस टाइम वो अंदर और ज्यादा सर बिकॉज शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है कार्बोनेटेड है सो दे आर नॉट गुड तो इससे अच्छा आप पानी पीजिए साथ साथ ऑल राइट सर डिजर्ट की जगह सर जैगरी इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो कि मीठा कंटेंट उसमें भी उतना ही होता है बट स्टिल इट हैज आयरन इन इट सेल्फ विटामिन हैं थोड़े से स्टिल बेटर एटलीस्ट सो वो बड़ी बड़ी जो हम पेस्ट्रीज खा जाते हैं एक टाइम में जिसमें आई थिंक 250 कैलोरीज एक स्लाइस में होता है सर सो हेल्दी ऑप्शन में ये है कि अगर बहुत मन कर रहा है तो एक कॉफी पी लीजिए थोड़ी सी टू टेस्ट चेंज योर टेस्ट सो सर ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस लाने चाहिए माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए बिकॉज सर अल्टीमेटली वी हैव टू चेंज आवर होल लाइफस्टाइल इट इज नॉट 1 day or 2 day with diet आज किया 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर हम कहते हैं अरे यार मेरा वेट फिर से वापस आ गया या मैं सुबह उठी मेरे को बड़ी इंडाइजेशन हो रही थी बिकॉज वी डू नॉट चेंज आवर ईटिंग हैबिट्स that is important we need to change our whole lifestyle the and mindful eating so we should know what we are eating that is important sir बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कि हेल्दी मतलब रेस्टोरेंट फूड को भी आप अपने नजरिए से मॉडरेशन में कितना ऑर्डर करना है उसके बाद क्या चीजें हेल्दी है किसमें क्या कंटेंट है देखते हुए सोचते हुए फूड को ऑर्डर कर सकते हैं और लगता है मुझे कभी कभी एक आध दिन वीक में चीट डेज जो होते हैं वो तो सर आई ऑलवेज से सर चीट डे करिए सर मैं इनफैक्ट चीट मील को तो मैं चीट डे भी नहीं कहती सर आई कॉल इट अ हैप्पी डे बिकॉज इट इज अर्नड थ्रू आउट द वीक सर आपने वीक में वर्कआउट अच्छा किया है यू बीन हैविंग हेल्दी फूड यू बीन माइंडफुल ऑफ योर ईटिंग सो वन डे सर चलता है सर चाहे आप दाल मखनी खाइए चाहे बटर चिकन खाइए सो उसको आप कहेंगे अर्न मील जैसे अर्न मील्स होती है वैसे अर्न मील है आपने पूरे हफ्ते अपने आप को बैलेंस डाइट किया और माइंडफुल ईटिंग की एक दिन चलता है हाँ सर यू वी डिजर्व इट आल्सो डिजर्व सर इट इंसान है सर एक ही जन्म मिला है तो खाएंगे जी भी नहीं तो कैसे चलेगा आपने हेल्दी फूड की बात की कैन हेल्दी फूड बी टेस्टी यस सर क्यों नहीं हो सकता सर हेल्दी फूड टेस्टी बहुत ज्यादा टेस्टी हो सकता है सर इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर कुकिंग इट सो द राइट अमाउंट ऑफ जैसे सर जिसको कह सकते हैं सीजनिंग डली हो राइट कुकिंग मेथड हो तो से जस्ट अ मिसकंसेप्शन के जो हेल्दी खाना है वो बहुत ब्लैंड होता होगा या अच्छा नहीं होता होगा ऐसा नहीं है सो वी कैन सेटिएट आवर पैलेट्स विद वेरी गुड थिंग्स है बहुत सारी चीजें हैं सपोज सर अगर हम पनीर है तो उसके साथ हम थोड़ी सी अगर हम पनीर को हल्का सा सॉटे करते हैं तो उसके ऊपर हल्की सी ऑरिगेनो की ड्रेसिंग डाल देते हैं हल्का सा ऑरिगेनो भी तो इट एड्स टू द फ्लेवर सर सर पिज्जा है सर एग्जाम्पल दे रही हूँ सर सर हम मैदे का पिज्जा खाने की बजाय सर अगर हम व्हीट बेस ले लें एंड पिज्जा खाना बिल्कुल बुरा नहीं है सर लोग कहते हैं यार इतना हैवी है नो अगर आप उसको राइट माइंडफुल वे से खाते हैं सर पिज्जा व्हीट बेस आजकल बहुत अच्छे व्हीट बेसिस आ रहे हैं सो उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स आ रही है चिकन बॉईल करके ग्रिल करके डालिए एड अ लिटिल सर cheese also cheese is very good for your gut health so it is a complete meal and sir very good for health टेस्टी भी है सर आप ऑरिगेनो डालिए चिली फ्लेक्स डालिए सीजनिंग सही रखिए सर कुछ भी बुरा नहीं है बट उसको भी मॉडरेशन में खाना चाहिए सर मतलब यू शुड नो हाउ मच वी नीड टू हैव सर छिया पुडिंग सर आजकल छिया सीड्स डाल के पुडिंग्स बनती हैं सर जिसमें थोड़ा कोकोनट मिल्क डाला जाता है थोड़े फ्रूट्स डाले जाते हैं ओवरनाइट ओट्स को सोक करके बनाई जाती है पुडिंग सो दे आर वेरी टेस्टी सर वेरी डिलिशियस सर आप मैंगो डालिए उसके ऊपर और खा के देखिए बेरीज डालिए सर अनार डालिए सर बहुत ही टेस्टी लगता है सर मतलब चीजों को हेल्दी बनाया जा सकता है अपने टेस्ट के हिसाब से
एंड और टेस्टी आल्सो सर। टेस्टी, हाँ टेस्टी। बिल्कुल। और ये कहना मतलब लोग कहते हैं, लोगों के मन में एक ये है नोशंस की मतलब अगर हेल्दी खाना है तो स्वादिष्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं आप सर, नहीं हेल्दी बिल्कुल नहीं। फूड को भी मतलब डिलीशियस बना सकते हैं। यस सर। हम्म, मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रही हूँ सर, हम्म, टू मेक सम गुड हेल्दी रेसिपीज आल्सो, विल बी शेयरिंग देम सून सर। बिल्कुल। मतलब काफी अच्छा हुआ कि हेल्दी स्नैकिंग पे हाँ जी। अगर आप कोई रेसिपीज शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे, या फिर श्योर ऐसे सर। लोग पता चले कि क्या अगर मतलब एक स्नैकिंग का बहुत बड़ा कल्चर है इंडिया में। हाँ जी। और हम लोग हमेशा किसी भी रीजन में जाएं, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या कहीं भी जाएं, वहाँ पे लोगों को होता है कि नाश्ते में, या राजस्थान में हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ है स्नैकिंग का। तो हेल्दी स्नैक्स कैसे अपने डाइट में इंक्लूड किया जाए कि स्नैकिंग भी करें लेकिन गिल्ट फ्री स्नैकिंग हो। यस सर, इट शुड बी गुड सर। बहुत सारे स्नैक्स हैं सर, बहुत हम्म, सारी चीजें हैं जो गिल्ट फ्री बन सकती हैं। सर सपोज आप जैसे फॉक्स नट्स की बात की थी हमने स्टार्टिंग में सर, हम्म, दे आर अ बेस्ट सर, बहुत न्यूट्रिशियस हैं सर, लो इन कैलोरीज हैं, वो खाए जा सकते हैं सर। आप सर बेसन का मूंग दाल चीला सर बना के खा सकते हैं, हम्म, दे आर अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन सर। और हम्म, छोटे छोटे रोल्स बना के रख लीजिए सर, साथ हरी चटनी सर, जो धनिया पुदीने की चटनी है सर, इट इज हम्म, सो गुड सर। इट इज अ सोर्स ऑफ आयरन सर, सीधा आयरन मिलता है आपको। रिप्लेस इट विद द सॉस जो हम सर केचप खाते हैं, खूब मीठा डाला होता है उसमें, जो हमें मालूम नहीं है। तो सर हरी पुदीने धनी पुदीने की चटनी यूज कीजिए सर। एक मूंग दाल के कटलेट्स बनते हैं सर, हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, उनको भिगो कर बनाई जाती है सर, छोटे कटलेट्स होते हैं, वो विद चटनी खा सकते हैं सर। बहुत सारे ऑप्शंस है सर। बॉइल्ड पोटैटो चाट बनती है सर, वेरी गुड सर। बॉइल्ड पोटैटोज आर नॉट फैटनिंग सर, क्योंकि हम्म, अगर आप मॉडरेशन में खाते हैं तो खाइए सर। भेल खा ले सकते हैं सर। सर स्नैकिंग में बहुत सारे सर बहुत सारे वो फूलियाँ वगैरह डाल के सर जो भेल बनती है सर, इट हम्म, इज वेरी गुड सर। मशरूम सॉटे कर सकते हैं आप सर, मशरूम ग्रिल कर लीजिए। टोफू है सर, आजकल टोफू इज इन द मार्केट सर। सर टोफू सॉटे करके खा सकते हैं सर। मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल सर। चिकन ग्रिल करके खा सकते हैं सर। हम्म। फिश तो स्टर फ्राई फिश को ग्रिल कर लीजिए सर। तो मतलब काफी अच्छा हुआ कि आप एक सीरीज प्लान करें जिसमें बिल्कुल सर, ये श्योर। है ना, हेल्दी ईटिंग पे, और लोगों बिल्कुल को पता चले, क्योंकि जैसे से आप जो चीजें बता रहे हैं, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि नहीं ये ऐसे चिल्ला है, लोग होता है कि नहीं ये इससे भी फैट है, इतना नहीं नो खाना, ये सर, नहीं क्यों खाना सर? आप सर चाहिए। हाँ। मूंग दाल है सर, दिस इज द, ये एक मूंग दाल ही वो दाल है जिसमें सर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सर। हम्म, सिर्फ भिगोना है और मिक्सी करना है सर, और हम्म, उसमें अपनी सीजनिंग्स डाल के। उल्टा सर जब तवे पे भी बनाते हैं सर, उसमें भी आपने तो सर इतनी फूड वो अटेंड किए हुए हैं हम्म, सर, तवे को भी पानी से साफ करके एकदम ठंडा करके फिर डालते हैं सर। हम्म, सर जो हम्म, फैट थोड़ा सा भी उस पे होता है वो भी चला जाता है सर। तो इट इज हम्म, सो न्यूट्रिशियस सर। उसके ऊपर आप बीटरूट डाल दीजिए सर, हल्का सा चीज डाल दीजिए, पनीर डाल दीजिए, वेरी न्यूट्रिशियस सर। फिर आपने कहा बॉइल्ड पोटैटो, अब पोटैटो का भी लोग कहते हैं कि ज्यादा उसमें नहीं खाना चाहिए, नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। सर सर पोटैटो नहीं खाना चाहिए, बट पोटैटो किस फॉर्म में नहीं खाना चाहिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैं कहती हूँ कि आई अंडरस्टैंड पोटैटो इटसेल्फ सर, नाम से ही लगता है कि हम मोटे हो जाएंगे, गोल आलू की तरह हो जाएंगे। तो बट सर पोटैटो को अगर आप फ्राई करेंगे तो सर इट इज पॉइजन, बिल्कुल भी। जो फ्रेंच फ्राइज मार्केट में मिलते हैं या जो हम घर में भी बच्चों को करके देते हैं, नो सो। उसकी जगह आप पोटैटो को बॉईल करके खा ले, ग्रिल कर लीजिए सर। इट इज नॉट सर, उसमें स्टार्च होता है, नो डाउट स्टार्च होता है, बट सर उसमें भी रेजिस्टेंट स्टार्च होता है सर, विच इज वेरी गुड फॉर आवर गट हेल्थ सर। तो वो आप खा सकते हैं। वही, फिर से वही बात आती है सर, हैबिट इन मॉडरेशन। जरूर खाइए, मजा लीजिए सर हर चीज का। तो बट उसको हेल्दी ऑप्शन देखना चाहिए कि किस तरीके से वो हमारी हेल्थ को बेनिफिट करता है। बिल्कुल, दैट बिल्कुल। इज आपने इम्पोर्टेंट। सही कहा कि ऐसे हाउ डू यू कुक इट, दैट्स इम्पोर्टेंट, है ना? यस, दैट कैसे इज सो। कुक करते हैं और बिल्कुल कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों सर, चीजें। बिल्कुल सर। अब कोविड का समय चल रहा है, और हमने बात भी की कि इम्यूनिटी, जब हल्दी दूध ये काफी चला, फिर आंवले के बारे में भी हम लोग ने बातचीत की। तो क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं कोविड के एरा में? और अभी आने वाले समय में, ऐसा अभी सेकेंड वेव खत्म नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज में हमेशा हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड वेव भी कभी भी आ सकती है। यस सर। तो उस समय अपने आप में हम क्या चेंजेस लाना चाहिए अपने न्यूट्रिशन में? क्या यस सर। रिक्वायरमेंट्स हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो आई वुड से सी कोविड हैज रियली टेकन अ टोल ऑन आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ सर, दोनों सर। बिकॉज फर्स्ट वेव में तो शायद हमें इतना फील नहीं हुआ, बिकॉज हमारे लव्ड वंस इतने गए नहीं थे। इस वेव ने
काफी फेयर भी था सर, सैडनेस भी बहुत रही बिकॉज कई लव वन सबके चले गए। सर सबसे इम्पोर्टेंट है सर, एक तो फेयर निकालना पड़ेगा अपना, बिकॉज सर वी हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग टू फाइट इट सर। देखिए सर, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंटली मैं कहूंगी टू फाइट एनी डिजीज। सर मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। सो दैट डे आई वाज हैविंग अ वर्ड विद अ डॉक्टर, वो कह रहे थे कि जो कोविड के पेशेंट्स हैं, जब वो ठीक भी हो जाते हैं सर, उनको ऑक्सीजन से वीन ऑफ करना इज अ वेरी वेरी बिग टास्क, क्योंकि मेंटली वो इतने डर जाते हैं। कहते हैं हमने बेड खाली करने के, द नेक्स्ट पेशेंट इज वेटिंग बट द पेशेंट इज नॉट रेडी टू मूव आउट। वो ऑक्सीजन को छोड़ते ही नहीं है, इस डर से कि ये ना हो कि मेरे को अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। तो सर मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक होना किसी की, टू फाइट एनी डिजीज। देन सर पोस्ट कोविड बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे जो लोग रिकवर कर रहे हैं उनको भी सर, जैसे अभी भी सर टायर्डनेस होगी सर, जॉइंट पेन्स हैं, किसी को सर मेमोरी भी इफेक्ट हो रही है कईयों की, बिकॉज सर आई थिंक दैट फियर हैज इनगल्फ्ड सो मच। सर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है सर, ब्रेथलेसनेस के इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं सर। सर डिप्रेशन हो रहा है लोगों को, फियर, क्योंकि फियर अभी भी इतना है मन में, ठीक होने के बाद भी सो ऑक्सीमीटर लगा लगा के देखते रहते हैं कि मेरा ऑक्सीजन लेवल ठीक है कि नहीं है। तो सर ये तो मेंटल हेल्थ अपने आप को ठीक रखना बहुत जरूरी है। सर देन कुछ अपने आप को इन्वॉल्व करके रखिए सर, आई थिंक दैट इज सो इम्पोर्टेंट। कोई मेमोरी गेम्स खेलें बच्चों के साथ, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली टू स्टे हैप्पी। सर अच्छा, कई बार हमें इन दिनों में कई मेरे को लोगों ने केसेस, कई लोग आए, या मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बहुत लो फील हो रहा है, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल देम स्टे हैप्पी। एक किसी को पकड़ लो, कोई एक, देखो हम सर सारी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते, वी कांट, क्योंकि इतनी बड़ा सोसाइटी है हमारी, एंड वी कांट मूव आउट। आप किसी एक को भी हेल्प कर देते हो ना सर, अगर अपने लेवल पे, चाहे किसी के घर खाना पहुंचा के है, चाहे किसी के घर दवाई भिजवा के है, या किसी भी तरीके से मेंटली उसको सपोर्ट करके है, सो दैट विल मेक यू वेरी हैप्पी सर। सो ऑलवेज कीप टॉकिंग टू पीपल, कीप मेकिंग द अदर पर्सन फील हैप्पी। आप खुशी फैलाओगे तो आगे से खुशी फैलेगी। So this is also important. सर फिर खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए सर ड्यूरिंग दिस टाइम। अब कोविड नहीं भी है सर, देखिए कोविड गया तो नहीं है, बट इस दौरान हमें सर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ सर, गुड न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। और सर जिनको कोविड हुआ है वो प्रोटीन वाली डाइट जरूर खाएं, क्योंकि सर मसल ब्रेकेज बहुत होता है। सो प्रोटीन्स हो उनकी डाइट में, बहुत सारे हों सर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, ये सब खाएं। सर देखिए इनिशियली ब्रेथलेसनेस होती है, बॉडी में इतनी जान नहीं होती, जॉइंट पेन्स है, तो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। सो सर ये भी मैंने बहुत बड़ा इशू, मेरे को किसी ने उस दिन बताया, somebody was facing कोविड, तो शी वाज एन एविड रनर। शी सेड रूपा, हम लोग मेंटली इतने आपको, अपने आप को इतना लेफ्ट डाउन फील करते हैं कि हम भाग भी नहीं पा रहे, बिकॉज सर जो रोज भाग रहा है सर, उसकी खुराक ही है कि मुझे 10-12 किलोमीटर रोज भागना है, और ऑल ऑफ सडन सब कुछ रुक जाता है सर। पहले कोविड हुआ, अगर आप रिकवर भी कर रहे हो तो यू कांट गेट ऑन टू ट्रैक एकदम सर, बिकॉज आपने पढ़ा होगा सर, कई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कई लोग कोलैप्स कर रहे हैं बाद में। सो तो धीरे धीरे सर एक्सरसाइज शुरू कीजिए, थोड़ी थोड़ी वॉक करके, योगा करके, सब प्राणायाम करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना सर धीरे धीरे। पहले आधा घंटा वॉक करिए, फिर 1 घंटा कीजिए सर। सो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू इम्प्रूव योर स्टेमिना। सो देन मैं क्या कहते हैं सर, हाइड्रेट करना अपने आप को बहुत जरूरी है सर, पानी पीना बहुत जरूरी है सर। नॉर्मल लाइफ में भी सर हम कहते हैं कि 10 से 12 ग्लास दिन में पानी पीना चाहिए सर, बट कई बार इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू काउंट ऑल्सो, कि यार 12 ग्लास अब गिन गिन के पियेंगे, और सर लोग नहीं पी पाते सर। सो नहीं सो पाते। मेरा सर छोटा सा एक टिप रहता है हमेशा सबको, मेरे कई क्लाइंट्स हैं जिनको मैं हमेशा ये टिप देती हूँ, 1 hour 1 glass ऑफ वाटर। 1 घंटे, 1 घंटे में 1 ग्लास पानी तो हम पी सकते हैं सर चलते फिरते। सो सर इफ यू काउंट द टाइम, आपका 8 10 12 ग्लास दिन के आराम से हो जाएंगे सर। और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम आपका थोड़ा वाटर इनटेक ज्यादा हो जाता है सर। और वाटर के फॉर्म जैसे नींबू पानी पी लीजिए, छाछ है, लस्सी है सर, बहुत सारी चीजें, कोकोनट वाटर है सर, ये पीजिए सर, ऑप्शंस हैं। सो ये आपको हाइड्रेट भी करेंगे सर। ये कोकोनट वाटर आपको इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होने देता बॉडी में, कितने न्यूट्रिएंट्स देता है। छाछ है सर, वेरी गुड फॉर गट हेल्थ। सर ये चीजों को हमें बेसिक डेली रूटीन में अडॉप्ट करना चाहिए सर। देन सर वेरी इंपॉर्टेंट इज रेस्ट। सर रेस्ट बहुत जरूरी है। लोग रात को बैठ के नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते हैं सर 2-2 बजे तक, एंड देन अगेन यू आर, आप सर हमारे अपने घरों की रूटीन है, कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, बट सर नींद पूरी नहीं होती। सो दैट इज वन वेरी बिग रीजन कि हमारी बॉडी रिपेयर ही नहीं हो पाती सर।
सर जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी का पूरा मैकेनिज्म सर रिपेयर का वर्क करता है, कोई नेल्स का काम कर रहा है, कोई हेयर की, कोई स्किन की, बॉडी की क्लेंजिंग हो रही है सर। सो अगर हम पूरा रेस्ट नहीं देंगे सर और अच्छी तरह रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी थकी हुई रहेगी सर। सो दैट इज व्हाई दे से कि हम हमेशा मील को 2 घंटे पहले खाना चाहिए। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट सर। सर 2 घंटे पहले खाते हैं तो हमारा फूड थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है। सपोज मैं 10 बजे सोती हूँ, मैं 8 बजे खाना खा लेती हूँ। सर मैं थोड़ा फूड चल के अपना काम भी करूंगी घर में, किचन में बच्चों का सब करेंगे। सर हमारा खाना कुछ तो डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी सर जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी अपना फंक्शनिंग स्टार्ट कर देती है। बट से यही चीज अगर हम रात को 10 बजे सो रहे हैं तो हम अगर 10 पौने 10 बजे खाना खा के और सीधा 10 बजे जाके बेड पे लेट जाते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज सर हमारी बॉडी का जो रिपेयर सिस्टम है ना सर, जिसने हमारी नेल्स का ध्यान रखना है या हमारी स्किन का या और चीजों का, हमारी बेसिक फंक्शनिंग का ध्यान रखना है, वो छोड़ के सिर्फ खाने पे कंसंट्रेट करता है कि इतना सारा खाना आया है, अब इसको पहले डाइजेस्ट करें। सो आधा टाइम सर हमारा खाना डाइजेस्ट करने में लग जाता है सर। और क्या होता है, हमारी बॉडी रेस्ट पे नहीं जा पाती क्योंकि फंक्शनिंग तेज तेज चल रही है। सर समटाइम्स यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू आर वेरी टायर्ड ऑल्सो। कई बार आपको भी लगता होगा सर, सुबह उठे हम थके थके सी फीलिंग आती है, यू आर नॉट फ्रेश। वाई? बिकॉज योर बॉडी हैज नॉट गॉन ऑन अ रेस्ट मोड ओनली। सो सर थोड़ा सा टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, थोड़ा सा सा आफ्टर मील्स वॉक करना, वो बहुत जरूरी है सर। और सर इम्पोर्टेंटली इस दौरान भी क्या है, एंड नॉर्मली भी सर, ऐसा कोई खाना खाना जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करे। से इन्फ्लेमेशन इज जिससे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, जिससे हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाती है। सब वो खाना, जैसे सब प्रोसेस्ड फूड्स, फ्राइड, फास्ट फूड सर, ये जितनी नमकीन बिस्किट ये सब सर, ये मैं बिल्कुल मना नहीं करती कि बिल्कुल मत खाओ सर, वी आर ह्यूमंस। बट धीरे धीरे कट डाउन करते करते मॉडरेशन में खाएं। So these are things we should keep in mind sir. बहुत डिटेल्ड आपने बताया। मतलब हेल्दी फूड के बारे में भी, मेंटल हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में भी। So, और ये बहुत जरूरी है हम सब लोग को फॉलो करना, yes, अगर अपने आप को हेल्दी रखना है तो। बिल्कुल sir. अच्छा, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन। Yes sir. और कुछ आप हमें टिप्स देना चाहें, कीपिंग इन माइंड जो हमारे साथ अभी ये टफ टाइम्स चल रहा है, जी, और कह तो रहे हैं कि हाँ अब थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, हाँ लेकिन जी। पता नहीं नेक्स्ट फिर कभी भी आ सकता है। तो कुछ टिप्स जो मतलब आपने काफी सी डिटेल में बताई है हमें, लेकिन अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, जैसे समथिंग अबाउट लाइक पोस्ट कोविड सिम्टम्स में जो चीजें होती हैं उसमें Yes sir. कैसे क्या क्या रेमेडीज रखनी चाहिए, होनी So चाहिए। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगी सर, सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड सर, दैट इज हम्म, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए कि हम सब ठीक हैं। और सर जिनके साथ कुछ मिसहैपनिंग्स भी हुई हैं फैमिली में, स्टिल सर आगे लाइफ में बहुत, देयर इज अ लॉन्ग लाइफ टू लुक। सर सब ऊपर बाबा जी का शुक्र करना चाहिए कि हम सब ठीक हैं। सर ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड ऑलवेज से टू कीप इन माइंड। दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग हम उठ के टू पे आवर थैंक्स टू द ऑलमाइटी। देन सर वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। व्हाट आई नॉर्मल, अभी आपसे मेरी बात हुई सर, वॉक करिए। अगर सर जो जॉगिंग करते हैं सर, वो थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी शुरू कर दीजिए। जो कुछ नहीं करते वो वॉक करनी शुरू कर दीजिए। सर थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए, सोने उठने के पैटर्न्स चेंज करें। सर थोड़ा सा टाइम अपने आप को रेगुलेट करें सर। और सर जहाँ तक खाने की बात है, माइंडफुल हो जाए सर व्हाट वी आर हैविंग, जो हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सर दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। सर अगर लॉन्गेविटी के साथ आगे चलना है सर, प्लास्टिक्स को बिल्कुल अपने घर से निकाल दीजिए सर। और सर माइक्रोवेव्स का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं सर, उसकी रेडिएशन से कैंसर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। सो ट्राई एंड यूज दीज थिंग्स लेस सर। घर का ताजा खाना, फर्स्ट कुक खाना खाएं। एंड सर इंजॉय योर मील विद योर फैमिली सर। बाकी सर पोस्ट कोविड आई वुड जस्ट से सर, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए अपना, क्योंकि सर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि घर में हम सारा टाइम सैनिटाइजर यूज करें, बिकॉज इट्स नॉट वेरी गुड फॉर द स्किन। तो सर घर में सर 20 seconds ऑफ हैंड वॉश सर इज रिकमेंडेड। सर हम जाते हैं फटाफट ऐसे किया और आ गए, सो दैट इज नो हैंड वॉश। से कम 20 seconds गिन के 20 करके आपको अच्छी तरह अपने हाथों को रिंस करना चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क सर, जो ये म्यूकोमाइकोसिस की प्रॉब्लम अब आ रही है सर, ब्लैक फंगस जिसको कहा जाता है सर, इट इज ड्यू टू सर ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। सर उसके लिए मैं कहूंगी कि कोई भी दवाई
बिना डॉक्टर के या जिनको आप कंसल्ट करते हैं उनसे कंसल्ट किए बिना मत खाइए। और बिना बीमारी की दवाई खाने का कोई रीजन ही नहीं है सर। सो इस डर से कि मुझे बुखार ना हो जाए तो मैं पहले ही पैरासिटामोल खा लूं, नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड जब तक आपको डॉक्टर नहीं कहते। देन सर मास्क को सर बिल्कुल धोइए, एवरी डे प्लीज वॉश योर मास्क एंड आयरन इट। सर धूप में सुखाना बहुत जरूरी है क्योंकि धूप सारी जर्म्स ले लेता है, एंड उसको अच्छी तरह आयरन करना जरूरी है अगर आप घर का मास्क यूज कर रहे हैं, क्योंकि आयरन करने से काफी जर्म्स निकल जाते हैं। सो आयरन योर मास्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर सोशल डिस्टेंसिंग हम सब मेंटेन कर ही रहे हैं एंड वी शुड कीप डूइंग इट सर, क्योंकि जब हम इजी होते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, बट प्लीज भूलेगा नहीं क्योंकि द फियर हैज नॉट स्टिल गॉन अवे। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स सर वी हैव टू कीप इन स्मॉल नहीं, माइंड। these are all useful tips। मतलब छोटे छोटे नुस्खे हैं, लेकिन अगर अपने जीवन में इसको हम लोग इस्तेमाल करना शुरू करें तो जरूर इससे हम लोग दूर रह सकते हैं कोविड से। लाइफ विल बी बेटर सर। यस सर, नहीं, थैंक यू। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इट और वाज, आपने काफी आसानी से हमें छोटी छोटी चीजें इतने डिटेल में बताई है, मतलब स्मॉल टिप्स बट इन डिटेल। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा आपसे बातचीत करेंगे, और इनफैक्ट हमने सिर्फ आज फोकस रखा न्यूट्रिशन पे और हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल पे। मे बी आपकी जो एथलीट वाली जर्नी है, मुझे काफी यस, जान के कि हाँ, कि कैसे ये कितना स्टेप बाय स्टेप वो लोग जानना चाहेंगे, कैसे साइकिलिंग आपकी जर्नी क्या रही, और उसके बाद फिर रनिंग का भी। तो मतलब मेनली फिजिकल हेल्थ के बारे में नेक्स्ट फिर बिल्कुल कभी सर, आपसे एनी बातचीत टाइम। करेंगे। थैंक बिल्कुल, यू सो मच सर। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर थैंक यू। हैविंग मी सर। थैंक यू। थैंक यू।